Hello guys, good evening everyone. Welcome to this beautiful session on current electricity. So this is the next episode of our JEE Sprint 2.0, isn't it? So today we are going to solve some JEE problems which have already appeared in January JEE also, right? So stay tuned, शुरू करते हैं class. So those who are seeing me for the first time, for those a bit of introduction, my name is Gaurav Gupta and I did my mechanical engineering from IIT Rourkela and I have cleared this prestigious exam of GATE with 99.5 percentile and I have taught and mentored 5,000 plus students, my dear students. So I am here because of the huge support that you have shown to the Vedantu. Okay, before starting the session, slight important informations that I want to give you, right? First of all, the app, the Vedantu app. So this will be very useful for your doubt clearance. You will be getting some free doubts here. Also the study materials you will be getting and the classroom resources. So please go to the Play Store and download this app, right? It will be very useful for you. Other features of this app are you will be getting the daily session PDF in this app. Okay, so please download it if you want the daily session PDF, whatever sessions we are taking, right? And also you will be getting the mini mock test on 1st April and 3rd April. So 1st April is just like day after tomorrow, right? So please gear up for this mini mock test. And then you will be having one mega mock test on 4th of April, which will be exact replica of your JEE Mains. Okay, so 3-hour session will be, 3-hour test will be there, which you have to take as JEE only. Okay, let's move ahead. Also, if you have not subscribed to the channel till now, please subscribe and please like the video if you want. Okay, if you like it, and also share it. Chalo, let's move ahead. So before starting the problems, I wanted to give you some theory. Okay, so these theory will be very handy for you because there is a fact in this 2019 JEE, the January JEE, they have asked 4 to 5 questions from the color coding of the resistor. Okay, color coding of the resistor, ये बहुत ज़्यादा important है. Even it is given in your NCERT और इसको समझना है, it's very important because they are asking questions on this, right? चलो देखते हैं what is the color coding of the resistor. So this is known as 4 band resistor जो हमारे syllabus में है, right? There are 4 band resistors. Shall I start? Guys, there is a lag. Is there any lag? Okay. Is it too much? Okay. We'll see. This one? One second guys, we are looking into it. Okay guys, is it fine now? Can you hear me? अभी कोई lag है क्या? Can you hear me guys? Let me know. Yes, it is fine now, right? Okay, great. अच्छा देखो, जिनको लग रहा है कि ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, this is NCERT concept. This I am teaching because JEE में 4 बार क्वेश्चन आया, right? 4 questions in this JEE only. तो देखो एक बार ध्यान से फटाक से कर लेते हैं इसको, right? So if anything is fine now, please let me know. Yeah, no lag, right? Okay. Most of you are saying no lag is there. Okay, great, perfect. चलो, let me start the session guys fast. देखो, this is known as 4 band resistor. इसमें 4 colors होते हैं, right? Let's say this color is having the code of X, this is Y, इसको लिख लो आप Z. जो लास्ट वाला कलर होता है that tells the quality of the resistor. वो टॉलरेंस बताता है. So if it is gold, it is 5%, and if it is silver, 10% tolerance is there, right? So which one is better? Gold is better because tolerance is less, तो error कम आएगा, right? If you want to calculate the resistance, you have to use this formula now: 10 into X plus Y into 10 to the power Z. Some of you are giving the tricks to remember, right? Yes, you can remember by tricks also. तो 10 into X plus Y into 10 to the power Z, ये formula use करके you can find out the resistance. How much is the resistance, right? देखो, जैसे इसमें क्या है? This is red. तो for red, what is the code? 2. So 10 into 2, 20. Plus, what is this color now again? Y का value कितना? Again 2, because that is also red. तो plus 2 into 10 to the power Z. और Z में कहाँ से color आएगा? This one, right? Brown. Brown is having color code 1. तो 10 power 1. Solve करके क्या आ जाएगा? 220. So this is a 220 ohm resistor. Okay? This is how we calculate the resistance from the diagram. आगे बढ़ जाते हैं. This problem.
Now the reason why I have done this, okay, in the class, this problem was asked in JEE Mains 2019. Please try this, guys. Let me know the answer. Anyone? I can read your chats here, so let me know the answer, guys. Anyone? चलो देखते हैं how to do this one, right? Wheatstonebridge is shown in the figure. It gets balanced when the carbon resistor used as R1 has the color code orange, red, brown. ठीक है? Color code is given. So now in JEE they are not directly giving the resistance. They want you to find it out. Orange, red, brown. Can anyone tell how much will be the resistor for this? Orange, red and brown. ध्यान से देखो. अभी we have seen the color codes, right? These are the color codes. So our color code here is orange, red and brown. So just let me go back to this. Yeah. तो देखो orange पहला color means x का value is equal to 3, isn't it? Red means y is equal to 2 and brown means z is equal to 1. ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई. Now we have this formula r is equal to 10 into x यानी कि 10 into 3 30 plus y which is 2 into 10 to the power z. z कितना है यहाँ पे 1, तो ये 1 आ गया. मीन्स जो R1 है जो कलर कोड में दिया हुआ है दैट इज हाउ मच 32 into 10 320 ओम. ठीक है, वी गॉट दिस 320 ओम. अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है. नाउ इट इज सिंपल, दिस इज जस्ट Wheatstonebridge, राइट? देखो ध्यान से. सो नाउ वी हैव टू मेक इट बैलेंस्ड Wheatstonebridge. इसको बैलेंस बनाना है. इन बैलेंस Wheatstonebridge प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स. ध्यान से देखना. तो मीन्स R1 टाइम्स R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3. ठीक है, अब ध्यान से देखना. ही इज आस्किंग R3 के लिए कलर कोड क्या होगा, राइट? ध्यान से देखते हैं. R1 अभी कितना निकाला हमने 320 इंटू R4 इज इट गिवन? यस. R2 इज गिवन एज 80, R4 इज गिवन एज 40. तो इंटू 40 इज इक्वल टू R2 कितना है 80 इंटू R3. ये कितना आ गया सॉल्व करके देखो. 40 डिवाइड बाई 80 1 बाई 2, दिस विल बी 160, है ना? 160 इज इक्वल टू R3. अब फिर से दिस इज नॉट द आंसर. ही इज अगेन आस्किंग कलर कोड. तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कलर कोडिंग, राइट? दिस इज नॉट जस्ट इन एनसीईआरटी नाउ. इन जेईई दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्किंग दिस. 160 बताओ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. 160 में कौन सा कलर कोड होना चाहिए? आई थिंक इट विल बी ब्राउन, ब्लू एंड ब्राउन. ट्राई करो ब्राउन, ब्लू एंड ब्राउन. इट विल कम एज 160 ओनली, है ना? ब्राउन, ब्लू एंड ब्राउन. ब्राउन के लिए क्या था कलर कोड? देखो जल्दी से इसमें. ब्राउन के लिए कलर कोड इज हाउ मच 1. ब्लू के लिए कलर कोड इज 6. तो 1 इंटू 10, 10 प्लस 6 16 इंटू 10 हो जाएगा बिकॉज 10 पावर 1, राइट? ब्राउन के लिए. तो इट विल बी 160. चलो ग्रेट गाइस. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस. आगे बढ़ जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, राइट? एंड मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस ऑल्सो. Brown, blue and brown. Okay, 160. Chalo guys, let's move ahead. So yeah, solution is also given if you want. Yes. Next question. Okay, this is again from JEE. Karte hain isko solve, right? When the switch S in the circuit shown is closed. So there is a switch as you can see here, right? There is a switch. He is asking then the value of current I will be. What is the value of current I when the switch is closed? Simple problem of current electricity. How to solve the circuits, right? You should know. देखो ध्यान से. Here you can see the earthing, right? Here it is earthed. So what is the potential here? 0 obviously, right? This is 0. What is the potential of this point? 20. ये दिया हुआ है मुझे. What is the potential of this point? 10 दिया हुआ है मुझे, right? These are the given quantities. The current I is this, I1 is this and I2 is this. He is asking how much will be I. There can be various methods to do it. What I am doing is, let's say this C potential I am assuming this as X. ठीक है, इसको कितना assume कर लिया? X. अब देखना KCL, Kirchhoff's current law, right? What does it say? Whatever current is entering this junction, C के पास जो भी current आ रहा है, so what are the currents entering? देखो I1 which is entering the junction plus I2, this is also entering the junction, तो I2. This should be equal to current leaving the junction because no charge can accumulate at any point, right? So जो भी current आया that should go out is equal to I. This is the situation. अब देखो how do I write I1 current? इन दोनों point का potential difference how much is this? 20 minus x. So 20 minus x divided by resistance 2. क्या कर रहा हूं मैं?
I इज इक्वल टू V बाई आर, दैट्स इट, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो दैट इज 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 में क्या लिख लेंगे, देखो I2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 माइनस एक्स, तो इट इज 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 4, है ना. सो I1 लिख लिया हमने, I2 लिख लिया. I1 कैसे लिखा, V बाई आर, I2 भी V बाई आर इज इक्वल टू I क्या है, x माइनस जीरो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखो x माइनस जीरो, तो सिर्फ x लिख लेते हैं उसको, एंड डिवाइडेड बाई 2. ओके क्लियर. इसको सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, एंड देन I1 इज हाउ मच, x बाई 2 मीन्स 10 बाई 2, यानी कि 5 एम्पियर. ओके 5 एम्पियर, तो करेक्ट आंसर इज 5 एम्पियर. लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर गाइस, आई कैन रीड द चैट हियर, बताओ मुझे. ओके सो मेनी ऑफ यू हैव गॉट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया, बी आंसर आया सभी का, है ना, ज्यादातर लोगों का. ग्रेट जॉब गाइस, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये फिर से वही है राइट, कलर कोडिंग पे, एंड दिस इज ऑल्सो जेईई मेंस 2019, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस, दो इट इज वेरी इजी, बट प्रैक्टिस होना चाहिए हमें, राइट. सो ही इज सेइंग दिस टाइम द कलर कोडिंग इज रेड, वॉयलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर. सिल्वर का व्हाट वी हैव सीन, व्हाट अबाउट सिल्वर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, बताओ. दिस रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस, राइट, टॉलरेंस को बताता है, एंड फॉर सिल्वर द टॉलरेंस इज 10%, है ना, दैट्स इट. तो 10% वाला एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है. दीज टू ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल, है ना, 5 और 20 हो नहीं सकता. सिल्वर के लिए इट इज 10%, एंड देन यू हैव द कलर कोड, राइट, रेड, वॉयलेट एंड ऑरेंज. बताओ कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, रेड, वॉयलेट एंड ऑरेंज, बताओ. सो रेड मीन्स x इज इक्वल टू 2, राइट, x का वैल्यू हो गया 2. वॉयलेट मीन्स कहां गया वॉयलेट, यस 7, सो y इज इक्वल टू 7, इजंट इट. 27 into 10 power 2 आ रहा है क्या सभी का, yes good. So red, violet and orange, orange means z is equal to 3. Now I have this relation, right, r is equal to 10x plus y into 10 to the power z, simple. तो x का वैल्यू कितना 2, तो ये हो गया 20, y कितना है तुम्हारा 7, so 27 it will become into 10 to the power 3, that means 27 किलो ओम, right. 27 किलो ओम एंड 5%, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था देख लो आप आराम से. ओके वी हैव सीन दैट, राइट, विच ऑप्शन इज मैचिंग, दिस वन, डी. ओके द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस गाइस, ये भी इजी है, बट बिलीव मी जेईई मेंस में दिस हैज बीन आस्क्ड, राइट, दिस ईयर ओनली, जनवरी. सो अगेन इंपॉर्टेंट, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर. उसका लेंथ खींच के कितना कर दिया, 0.5% लॉन्गर. द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड. वो कह रहा है वॉल्यूम हैज टू रिमेन अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा. ओके चलो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल डिवाइडेड बाय ए, वी नो दिस फॉर्मूला, राइट. रेजिस्टिविटी into length divided by area of cross section, but he says volume remains same, so somehow I have to bring volume into the picture. How to do that, multiplied by length in numerator and denominator. तो ये क्या बन जाएगा देखो, रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, है ना, ग्रेट. तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया. नाउ सी फ्रॉम हियर आई कैन टेल दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कीपिंग द रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, because material change नहीं हो रहा. if material is not changing, resistivity will not change, right, it is the property of material. also he only had said volume is not changing, तो means r is proportional to l square, है ना, r is proportional to l square. अब देखो कैसे, resistivity constant है ना, क्योंकि material change नहीं हुआ, and volume also is constant, तो r is proportional to l square. अब आपने error analysis में सीखा होगा that when you have this kind of relation and you want to know changes, right, delta r by r, delta l by l, तो क्या करते हैं, दोनों साइड एक बार तो log ले लो. so log r is proportional to 2 log l, ये हो जाएगा ना, दोनों साइड log ले लिया, log r is proportional to 2 log l. now differentiate both sides, तो ये क्या बन जाएगा, log r का differentiation delta r by r, डेल्टा के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, is equal to 2 into delta l by l, है ना, delta r by r is equal to 2 into delta l by l. And how much is delta L by L? Already given 0.5.
तो डेल्टा आर बाई आर कितना हो जाएगा, 2 into 0.5 means 1%. Okay, so the correct answer here is 1%. So this is the combination of current, electricity and error analysis. ठीक है, दोनों फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें. चलो ग्रेट, आई होप दिस वॉज क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ जाते हैं. करेक्ट आंसर इज 1%. यस, बहुत ही आसान. आई विल नॉट टेक मच टाइम इन दिस. इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं. सी हाउ सिंपल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन जेईई, राइट? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. जिसको फॉर्मूला याद है, इट विल बी डन. I is equal to NEA/VD. करंट का ये इक्वेशन होता है ना? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड व्हाट ही इज आस्किंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली ही इज आस्किंग. तो VD विल बी इक्वल टू I अपॉन NEA एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू, राइट? करंट गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ई तुम्हें ऑलरेडी आता है कितना होता है वो, है ना? सो यू विल बी डूइंग दिस एंड यू विल बी गेटिंग सम आंसर. बताओ क्या आंसर आ रहा है? एनीवन विद द आंसर? आंसर आ जाएगा 0.02. आई हैव गिवन द कैलकुलेशन ऑल्सो. देखो करंट रख दो यहाँ पे 1.5 NEA. ठीक है, ग्रेट. चलो आगे बढ़ जाते हैं. करेक्ट आंसर इज 0.02 फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सर्किट से. ठीक है, सो सर्किट्स प्रॉब्लम आर रियली गुड. थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा. लेट्स ट्राई टू डू दिस. ओके, एनीवन विद द आंसर बाय द वे? यस और नो? चलो देखो, इन द गिवन सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0 एंड 18 वोल्ट इज द EMF, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है. ओके, R1 इज 400 ओम. तो कौन सा है R1? ये वाला, राइट? दिस इज 400. R3 इज 100. R4 इज 500. आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस R4 इज गिविंग रीडिंग ऑफ 5 वोल्ट. इसका क्या मतलब है? सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू इज गिवन. R2 वी हैव टू कैलकुलेट एंड ही ऑल्सो सेज दैट वोल्टेज अक्रॉस R4, ये जो R4 है ना, इसके अक्रॉस ही हैज कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर विच गिव्स अ रीडिंग ऑफ हाउ मच? 5 वोल्ट. ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? एंड ही हैज ऑल्सो गिवन द रेजिस्टेंस वैल्यूज. R2 पूछ रहा है वो. अभी देखो ध्यान से हाउ टू डू दिस. सो लेट मी ड्रॉ अ डिफरेंट डायग्राम. ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसका. ठीक है, आई हैव टेकन दिस करंट एज I. ये वाला करंट मैंने I लिया, राइट? ये वाला करंट क्या ले लिया? I1 एंड दिस करंट इज I2. ध्यान से दिख रहा है आपको सब कुछ, है ना? दिस रेजिस्टेंस इज 400, दिस इज 100 एंड दिस इज 500. एंड व्हाट इज द वोल्टेज दैट इज गिवन अक्रॉस R4? हमें क्या वोल्टेज दिया हुआ है उसने? वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग है? 5 वोल्ट. मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 500 ओम इज 5 वोल्ट. अच्छा, अब तो मुझे बचपन से पता है, बचपन से क्या, एंशिएंट सिविलाइजेशन से पता है कि V इज इक्वल टू IR, इजंट इट? ओम्स लॉ. यहां पे आई कैन फाइंड कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग ऑन दिस I1 क्या हो जाएगा? देखो V विच इज 5 वोल्ट ऑलरेडी गिवन टू मी डिवाइडेड बाई 500, है ना? 5 डिवाइडेड बाई 500. तो ये करंट कितना आ गया बताओ? 5 डिवाइडेड बाई 500, 0.01 एम्पियर. ठीक है, समझ में आया? सो I1 इज 0.01 एम्पियर. ठीक है, समझ में आ गया सर, कोई बात नहीं. नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर. अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच? V इज इक्वल टू IR. क्या सेम करंट यहां से भी फ्लो होगा? ऑब्वियसली दिस इज इन सीरीज, राइट? तो जो भी I1 करंट आया यहां से, सेम करंट हैज टू फ्लो हियर. तो इस रजिस्टर से भी करंट कितना है? 0.01. तो हाउ मच इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दैट रजिस्टर? 0.01 इंटू 100, मतलब 1 वोल्ट, है ना? दिस इज 1 वोल्ट. मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट और यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर? ये वाला 6 वोल्ट. देखो 5 + 1, ये तो पैरेलल में है ना दोनों, ये दोनों सर्किट्स पैरेलल में है. तो यहां का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज यहां का पोटेंशियल डिफरेंस. तो दिस इज 6 वोल्ट अगेन, राइट? अब देखना एक और चीज, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हियर? यहां से यहां तक ये पूरा कितना है? दिस इज 18, राइट? ये पूरा 18 है एंड दिस इज 6, ये पूरा 6 है. तो हाउ मच इज दिस गाइस? बताओ मुझे, हाउ मच इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस नाउ? ये पूरा 6, दिस होल इज 18, सो दिस इज 12 वोल्ट. समझ में आ रहा है क्या? ये दिस पोटेंशियल विल बी 12 वोल्ट अक्रॉस दिस.
यूजिंग दिस पोटेंशियल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट आई। सबसे पहले आई निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो आई विल बी इक्वल टू हाउ मच, V, यहां का V डिवाइडेड बाई यहां का R। सो हाउ मच इज यहां का V, 12 वोल्ट। हाउ मच इज रेजिस्टेंस, 400। 12 डिवाइडेड बाई 400, दिस विल गिव यू 0.03 एम्पियर। अब तो हो गया प्रॉब्लम, देखना ध्यान से। सो दिस करंट इज हाउ मच, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। दिस कलर इज हाउ मच, दिस करंट इज 0.03। ये जो I1 में करंट गया था दैट वाज 0.01। तो हाउ मच इज I2, KCL, यहां से 0.03 आया, यहां पे 0.01 गया, तो हाउ मच इज दिस, 0.02, है ना, 0.02। अच्छा, क्या मुझे यहां का करंट पता है? यस। क्या मुझे वोल्टेज पता है? यस। देन कैन आई कैलकुलेट R2? ऑब्वियसली। तो कितना हो जाएगा R2, बताओ? V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाई I। सो V इज 6 डिवाइडेड बाई करंट इज 0.02। द आंसर विल बी 300 ओम। ठीक है, 300 ओम विल बी द आंसर। So this is how you have to solve the circuit, है ना? So this was a good problem, है ना? You have to do a lot of things in this problem. Are we clear on this, guys? 300 सभी का आ गया क्या? Let me know in the chat box. Okay, 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 great, great. हाँ, यहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट काम भी नहीं करेगा, okay? You have to do like this only. चलो, great. It took me some time because I was solving and explaining. If you solve it on your own, it will take less time, okay? So don't worry. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ठीक है? देखो, अ यूनिफॉर्म वायर, लेट मी कम बैक टू द स्लाइड। हाँ, दिस वन, राइट, सॉरी। सो एट अ ट्राइंगल लेंथ विल बिकम L/3। डू यू एग्री गाइस? लेंथ कितना बन जाएगा? L/3। L/3 मतलब दिस रेजिस्टेंस विल बिकम R/3, है ना, बिकॉज एरिया इज नॉट चेंजिंग, rho is not changing, length is becoming L/3, so resistance becomes R/3. So this is R/3, this is also R/3 and this is also R/3, and R was given to me as 18, है ना? ये कितना given था मुझे? 18। तो देखो इस डायग्राम में ध्यान से, ये बन जाएगा 6, isn't it? This will become 6 and that will also become 6, this will also become 6. He is asking the resistance, equivalent resistance between two vertices, तो इन दोनों के बीच में। तो देखो ध्यान से, let's say this is point A, this is point B, these two are in series, है ना, 6 और 6 same current, तो 12 ohm, and then that 12 is in parallel with this 6, तो 12, 1/12 plus 1/6 is equal to 1/R equivalent. R equivalent will be equal to 4 ohm. 4 ohm is the correct answer, and I have seen most of you have given the correct answer, so good job guys, good job. 4 ohm, right? C. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Let's take the next question. Yes. A 2 watt carbon resistor. देखो, again they have used the color coding. So how many times they have asked questions from color coding? It is very important to remember this now, okay? Because in JEE Mains, upcoming JEE Mains also they can ask this. So those who are not remembering this, वो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, isn't it? Same thing. चलो, 2 watt carbon resistor is color coded with green, black, red and brown respectively. अच्छा, in this case, the brown is just showing the tolerance, right? We have to take the first 3 always. याद रखना, we have to just take the first 3. Green, black, red, है ना? Green, black and red. अब मुझे बताओ इसका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस? Green, black and red. So green, black, Y और red मतलब Z. This, right? तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो, X is equal to 5. तो 10 into 5 plus Y is equal to 0 into 10 to the power Z. Z is equal to 2. तो ये कितना आ रहा है? 50 into 10 to the power 2 ohm, right? This is the resistance, 50 into 10 to the power 2. अब देखते हैं उसने और क्या पूछा है इस पे. He is asking the maximum power, the maximum current, sorry, which can be passed through this resistor if power is given. अच्छा, power is given, resistance I have just now calculated. Can I find out current? Obviously, very easy, right? So how to find out the current? I have this simple formula. Power is equal to I square into R. That's it. तो यहाँ पे आपको अगर I max चाहिए, R should be minimum. R हमने निकाल दिया, right? Color coding से. R is coming as 50 into 10 power 2. यहाँ पे आप वैल्यू रखो, you will be getting the current. I max should be equal to 20 milliampere. Okay? Just slight of calculation you have to do. Okay? Got it, guys? Great. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Yes, this question again important one.
अगेन फ्रॉम जेई, राइट, जेई मेंस 2019। देखो ध्यान से, इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब द करेंट्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, मतलब ये वाला R1 है, दिस इज आवर R1 रेजिस्टेंस एंड दिस इज R2 रेजिस्टेंस। तो ही इज आस्किंग हाउ मच इज द करंट पासिंग थ्रू R1 एंड R2, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं इसको। इन सच प्रॉब्लम्स वेरी इजी वे टू डू इट, टेक एनी पॉइंट एज जीरो पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सा पॉइंट जीरो पोटेंशियल लेना चाहिए। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज जीरो पोटेंशियल, कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन टेक अ रेफरेंस वेयर यू कैन से ओके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो और द पोटेंशियल इज जीरो। सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट, ओके, हियर द पोटेंशियल इज जीरो। अक्रॉस दिस बैटरी देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। जीरो इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, मींस अक्रॉस द बैटरी, यहां पे ये भी ये जीरो है एंड दिस इज हायर पोटेंशियल। हाउ मच हायर, 10 वोल्ट हायर, बिकॉज डिफरेंस शुड बी 10। तो हायर इज जीरो, तो लोअर कितना हो गया, उससे 10 कम, राइट, 10 माइनस देन जीरो, 10 लेस देन जीरो, तो दिस विल बी -10, ठीक है। फ्यू ऑफ यू टेक दैट एज 10, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा इफ यू टेक दैट एज 10, है ना, -10 होगा ये। अब देखना ध्यान से, सेम थिंग हियर ऑल्सो, दिस इज जीरो, देयर इज अ बैटरी, राइट। अच्छा, वंस मोर, ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखो, दिस पॉइंट आई हैव टेकन एज जीरो पोटेंशियल, है ना, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लिया। देन देयर इज अ बैटरी, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, 10 वोल्ट। दिस इज द हायर पोटेंशियल, ये जो बड़ा वाला डंडा होता है इसमें, है ना, दिस टेल्स हायर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल इज जीरो, तो लोअर पोटेंशियल क्या होगा, 10 लेस देन जीरो, सो इट इज -10। सेम थिंग फॉर दिस बैटरी, दिस इज द हायर पोटेंशियल, ये बड़ा डंडा इस तरफ, दिस इज जीरो, तो लोअर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट अगेन। अब देखना, दिस इज -10 वोल्ट एंड देन यू हैव प्लेन वायर। इन अ प्लेन वायर देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप बिकॉज हम रेजिस्टेंस उसका जीरो ले लेते हैं, तो यहां ऑल्सो पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। सेम लॉजिक अगेन अ प्लेन वायर, तो दिस इज ऑल्सो -10 वोल्ट। सेम लॉजिक प्लेन वायर, -10 वोल्ट। अब देखो, अक्रॉस दिस रेजिस्टर हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो -10, दिस इज ऑल्सो -10, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, राइट, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, बोथ पॉइंट्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन सेम पोटेंशियल, सो डिफरेंस इज जीरो। तो यहां पे करंट कितना आ गया गाइस, करंट हियर इज इक्वल टू जीरो, मतलब कहां से जीरो हुआ, R2 से इट इज जीरो। व्हाट अबाउट R1, if you see across R1 this is -10 and this is 0, तो potential difference between R1 is 10, है ना, 0 और 10 में कितना डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 10, तो करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 20, 10 डिवाइडेड बाय 20, 0.5 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 0.5 and current flowing through R2 is 0, option is D, है ना, option is D, correct, good। आगे बढ़ते हैं गाइस, let's do the next question। हाँ, इसका ऑप्शन D आ गया, yes। what about this, current is given, a current of 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of this much। कोई एक unknown resistor, right, this का resistor is not known to me, how much is this I don't know right now, I'll calculate what to do, right? Current is given as 2 milliampere and power is given, power dissipated is this much. Now he is saying dissipated power when an ideal power supply of 11 volt is connected across it। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टर है, अननोन रेजिस्टेंस R, current flowing in this is 2 milliampere and it dissipates a power of how much, this much, 4.4 watt। Can I calculate R from here very easily? Yes, I have this formula, P is equal to I square into R, हो गया। यहां से you can get R, isn't it? You can get R from here। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, P is equal to I square R यूज करके you calculated the resistance। If you do it, resistance will be this much, 1.1 into 10 to the power 6 ohm। कैलकुलेट करके देखो, right? Then he is saying कि करंट के बजाय क्या आ गया, वोल्टेज। In terms of voltage also I know the formula, P is equal to V square divided by R। तो अब क्या हो गया, voltage is 11 square, R you have already calculated,
हो गया काम आसान. आंसर विल बी दिस 11 into 10 to the power minus 5. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पावर. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पावर पढ़ते हैं, राइट. ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू इक्वल रेजिस्टेंस when connected in series to a battery consume electric power of this much. So he is saying, first of all, he is having two equal resistance in series connected to a battery, right? तो ये किसी बैटरी से ऐसे connected है. This is R, this is R because they are equal resistances. Consume electric power of 60 watt. इस केस में जो पावर है that is 60 watt, isn't it? अब देखो, if these resistances are now connected in parallel, instead of taking them in series, he is taking them in parallel. ऐसे ले लिया उसने, and then connected to the same battery, right? ये situation आ गई. This is R, this is also R. Now he is asking electric power consumed will be simple, right? So let's say here power is P dash. I want to calculate how much is P dash. I have the formula that power is equal to V square divided by R. Let's say V is the potential of the battery here, V is the potential of the battery here, because we are not changing the battery, we are just changing the arrangement. सीरीज से पैरेलल कर दिया उसको, है ना. अब देखो, इनिशियल केस में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R प्लस R 2R. तो क्या बन गया पावर? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R. ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट केस में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R and R they are in parallel, तो 1 upon R ये कितना आ जाएगा बताओ? Any idea guys? How much will be that? ऐसा कर लो ना इसको, देखो R equivalent in parallel is given by R1 R2 upon R1 plus R2. ये याद रख लो आप. तो R square divided by 2R, तो R by 2. Here it will become R by 2. तो power dash P dash in second case it will be V square divided by R by 2, मतलब कि 2 ऊपर आ जाएगा. सो 2V स्क्वायर बाई आर. नाउ जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दिस पावर एंड दिस पावर. कितना आ रहा है देखो, 2V स्क्वायर बाई आर, 2V स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई V अपॉन 2R. तो ये बन जाएगा 2R अपॉन V स्क्वायर, है ना. यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, हाँ है V स्क्वायर है. तो V स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, R गॉट कैंसल्ड. ये आ जाएगा 4 टाइम्स. तो P डैश डिवाइडेड बाई 60 is equal to 4, यानी कि P dash is 4 times of this 240. Okay, got it guys everyone? B, yes, correct. Most of you are getting the correct answer. Very good job. अच्छा चल रहा सब. Great. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Next problem. ये तो उसी का solution है, right? Understood this you already. Okay. This is a problem from meter bridge, है ना. ये meter bridge का problem है. Again a very important problem. देखना ध्यान से how to do this one. He says स्क्वायर क्यों नहीं लिया? स्क्वायर था वहां पे, V स्क्वायर हमने लिखा था, वो सर्कल करने के बाद स्क्वायर दिख नहीं रहा था. ओके, स्क्वायर वाज देयर एंड स्क्वायर गॉट कैंसल्ड आउट. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन, इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज. ये मीटर ब्रिज है, राइट. हाउ मच द लेंथ ऑफ दिस मीटर ब्रिज? 100 सेंटीमीटर, इजंट इट? 100 सेंटीमीटर मतलब कि 1 मीटर ओनली, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज. ठीक है. Shown in the figure, the null point is obtained at a distance of 40 centimeter from A. ये हमारा A है. And here let's say जॉकी को ऐसे मूव करते हैं ना मीटर ब्रिज में, we move the jockey. Null point मतलब current flowing through the galvanometer becomes 0, है ना. तो he is saying null point is somewhere here at a distance of 40 centimeter from A. Okay? तो अगर ये 40 centimeter है, total is 100 centimeter, right? Why only 100 centimeter? I can't understand. मीटर ब्रिज में 100 ही होता है, that's why इसका नेम इज मीटर ब्रिज. ओके, मीटर का मतलब 1 मीटर का लेंथ होता है उसका रेजिस्टेंस वायर का. ओके, नारायण हैज आस्क्ड दिस डाउट, सो आई हैव क्लियर्ड दिस डाउट. हाँ, सो दिस इज 40 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा देखो 60 सेंटीमीटर. टोटल 100 है ना यार, दिस इज 40 तो दैट इज 60. दिस रेजिस्टेंस वायर जिसका हम लेंथ लिख रहे हैं, राइट, 40 एंड 60, दिस विल हैव सम रेजिस्टेंस. Let's say that resistance is lambda, which is nothing but resistance per unit length. Lambda क्या है? The resistance of the wire per unit length. Per unit length में कितना है वो lambda. तो can you tell how much is resistance of this portion? ये 40 सेंटीमीटर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा. द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन विल बी जस्ट लैम्डा टाइम्स द लेंथ 40, क्योंकि हमने क्या लिखा है, लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ.
इफ आई वांट रेजिस्टेंस मैं क्या करूंगा, लैम्डा इनटू द लेंथ, है ना, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। तो यहां का रेजिस्टेंस चाहिए था, इट इज लैम्डा इंटू 40। व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज लैम्डा इंटू 60, है ना, इस साइड का क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 60। ग्रेट। अब ये व्हीटस्टोन बन जाता है ना, यू वुड नो दैट। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कुछ बना सकते हैं, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, ये वाला हो गया आपका लैम्डा इंटू 40 और ये वाला क्या हो गया, लैम्डा इंटू 60। दीज आर द 4 रेजिस्टेंसेस। इन बिटवीन देयर इज द गैल्वेनोमीटर और उसमें कोई भी करंट नहीं है, दिस करंट इज 0, isn't it? When the current in this is 0, this is known as balanced Wheatstone bridge, है ना बच्चों, सबको आता है ये। This is known as balanced Wheatstone bridge, and in balanced Wheatstone bridge there is a relation, R1 into this is equal to this into this, यही होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। अब देखो नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये पहला वाला सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताया, राइट, R1 60 लैम्डा 40 लैम्डा R2, तो क्या लिख सकता हूं मैं, R1 इंटू 60 लैम्डा, देखो ध्यान से इक्वेशन, R1 इंटू 60 लैम्डा इज इक्वल टू R2 इंटू 40 लैम्डा, राइट, ऐसा लिख सकते हैं हम। R1 इंटू 60 लैम्डा इज इक्वल टू R2 इंटू 40 लैम्डा। यहां से क्या आ गया, R1 बाई R2 इज 2/3, ये था फर्स्ट सिचुएशन, राइट, R1 बाई R2 इज 2/3। बट अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देखो ध्यान से, देयर इज अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। नाउ इन द क्वेश्चन ही सेज if a 10 ohm resistor is connected in the series with R1, ये जो R1 है, right, in this R1 you have added a 10 ohm resistor, after that the null deflection shifts by 10 centimeter। तो जो null deflection पहले 40 में मिल रहा था, you are getting the null deflection as 40, right, you remember that, now it will be shifted by 10, तो यहां से लेंथ कितना हो जाएगा 50 and this length also will become 50 because total is 100, right, तो 50 और 50 पे आपको null deflection मिलेगा। But now again one twist, last thing, the resistance that should be added in parallel with R1 plus 10, ये अब R1 plus 10 हो चुका है, right, इसके साथ parallel में क्या लगा दें such that null point shifts back, null point comes back to the initial situation। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। So first of all null point was at 40, then 10 ohm was added here in series, तो null point कहां चला गया 50 पे। Then he is saying how much should be added in parallel, one more resistor, such that it comes back, है ना, nice question। अब देखना ध्यान से। So one thing we have already done, this one, right, simple वाला case we have already done, इसमें कुछ भी add वैड नहीं किया था, we got R1 by R2 is 2/3। Second case में उसने क्या बोला, what he is saying, he is saying that if you add 10 ohm तो ये 50-50 हो जाते हैं, राइट, इट शिफ्ट्स बाय 10, तो R1 प्लस 10 R2 ये कितना बन गया 50 लैम्डा, दिस बिकम 50 लैम्डा, ये जो 40 और 60 थे वो 50 और 50। नाउ यू कैन अगेन टेक दैट प्रोडक्ट, राइट, R1 प्लस 10 इंटू 50 लैम्डा, 50 लैम्डा इंटू R2, ये रिलेशन आ जाएगा, ध्यान से देखो, यू विल गेट दिस रिलेशन, राइट, R1 प्लस 10 बाई R2 इज इक्वल टू 1, यू विल गेट दिस रिलेशन। जस्ट सॉल्व दीज टू रिलेशंस, ये दोनों इक्वेशंस, ये सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों सॉल्व करके 2 इक्वेशंस आर देयर, 2 unknowns are there, R1 and R2, you will be getting the values of R1 and R2, ठीक है। R1 is 20 ohm and R2 is 30 ohm। अभी 2 केस हमने खत्म कर दिया, there is another case, third case, उसमें वो पूछ रहा है how much should be added in parallel कि ये वापस से 40 लैम्डा बन जाए और ये वापस से 60 लैम्डा बन जाए, isn't it? चलो वो वाला केस भी कर लेते हैं। So going forward towards the third case, now I already know the value of R1 and R2, right? R2 का वैल्यू है 30, R1 का वैल्यू है 20, so R1 plus 10 का वैल्यू कितना है 30 only, right? I have added one resistor in parallel as the question said that we have to add one resistor in parallel such that this also becomes 40 lambda and 60 lambda। कर दिया मैंने, ये डायग्राम समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द रिलेशन नाउ, ये दोनों जो है वो पैरेलल में है एंड दिस टोटल इज 30, राइट, R1 प्लस 10 इज 30, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये दोनों जो पैरेलल में है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना, देखो 30 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई R2, जो रिलेशन पहले आते थे ना वैसा ही, जैसे यहां पे आया था ना R1 बाई R2 2/3, R1 प्लस 10 बाई R2 1, यहां पे क्या मिल जाएगा इतना डिवाइडेड बाई R2 will be equal to 2/3 again,
है ना, विल बी इक्वल टू 2/3 बिकॉज ये फिर से 40 और 60 हो गए हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस x you will be getting x is equal to 60 ohm which is the final answer of this question. ठीक है, तो this was a very good question actually. So the correct answer will be B, 60 ohm. So you should add 60 ohm resistor to bring back the same null deflection. Okay, 40 and 60. Chalo guys, so hope you understood. Someone is saying explain the last diagram. I'll just explain the last diagram in just 1 minute. देखो, he had said कि R1 plus 10 में you have to add one more resistor which is in parallel, such that adding that resistor again null deflection becomes 40 and 60. समझ में आ गया क्या? Same thing we have did. Okay? Parallel में add किया, 40 60 बना दिया. Solve it, you will get x is equal to 60 ohm. Got it? Great, great. चलो guys, so I hope you enjoyed the session and this was the last question for today. Schedule एक बार फिर से देख लो आप लोग, right? So these are the schedule in case you have missed any class, please go and watch it. Okay, again in the YouTube. So 20th March से शुरू हो चुका है physics. This is for physics. And yes, today we are doing current electricity. Tomorrow 30th of March, Sadap sir will be taking magnetism. Okay, and this will be continued. Okay, next this is for maths. ये सारे schedule दिए हुए हैं. This is again for maths, chemistry और एक और केमिस्ट्री, राइट? सो यस, प्लीज डाउनलोड द ऐप गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, राइट? डाउट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, क्लासरूम रिसोर्सेस हैं, एवरीथिंग इज देयर, सो इट इज़ वेरी यूजफुल. ऑल्सो ये भी जो मैंने आपको बताया था, सेशन पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे, राइट? यू पीपल वेर आस्किंग फॉर सेशन पीडीएफ. कहाँ पे मिलेगा वो? दैट यू विल गेट इन द ऐप ओनली. ओके, ग्रेट. मिनी मॉक टेस्ट इज ऑन 1 अप्रैल. बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करो और ऐप में जाके ये टेस्ट दो. ओके, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. प्रिपरेशन के टाइम पे द थिंग विच हेल्प्स अलॉट इज द टेस्ट सीरीज. वहां से आपको पता चलता है क्या आता है और क्या नहीं आता, एंड देन यू कैन इंप्रूव दोज टॉपिक्स, राइट? इम्प्रोवाइज ऑन दैट. Great. Even Virat Kohli has to do some net practice, isn't it? So you have to take the tests very seriously. To access, yeah, mega mock test also is there on 4th of April. It is also coming. Chalo. Also, if you like the video, please push the like button, right, in the YouTube. Share it with your friends. They will be also be benefited, and also subscribe to the channel, right? Chalo guys. So this is it for today. Signing off, right? मिलते हैं next class में. Bye bye.